था। आप प्रिविलेज्ड होते हो कि यू नो व्हेन एनीथिंग हैपेंस टू यू, जब आप शहीद हो जाते हो या कुछ हो जाते हो, यू आर ड्रेप्ड विथ ट्राइकल। मेरे लिए लाइफ का ट्रू मीनिंग इज ओल्ड मॉन्क यार। हर वीकेंड ओल्ड मॉन्क इज एवरीथिंग, सो दैट इज लाइफ। ये फंडामेंट, ये क्वेश्चन आप सदगुरु जी या रविशंकर जी से पूछ। Probably one day delay, or else we would have shot the Karachi would have been history, you know. So sir, सुन के I am getting goosebumps. I can imagine आपकी क्या feeling रही होगी. Students would have been feeling the same. Sir, so after such a long span and a glorious service to the nation, that nation owes you respect and full wisdom. Sir, तो the last time when you were donning the uniform, sir, वो क्या feeling थी? What were the thoughts in your mind? Were there any thought about कि the road not taken, अगर उस दिन कुछ और decide किया होता uniform की जगह? What was the mind? What was playing in your mind during that time, sir? Yeah, so I still remember my last day in uniform. It was 3rd January 2009, and it was painful. You know, मैं झूठ नहीं बोलूँगा. It was painful because after serving for 10 glorious years, you are relinquishing your uniform. I'm a short service commission officer, and since I was decorated, काफी सारे commendations थे. I was given a choice of permanent commission, the first choice. You know, मुझे तो बुला के बोला गया था कि you can opt for permanent commission. But you know, life एक ही बार आता है यार. You know, life एक ही बार आता है. वो जिंदगी जीनी थी as a फौजी यूनिफॉर्म में. So that part was over, and you know, regret नहीं है बिल्कुल. But तकलीफ बहुत होती है. So that's why I'm still, I behave like I am a फौजी, तो I keep that even today, because my course mates are going to be brigadiers equivalent soon, commodores now. Navy के commodores बनेंगे. आज भी हम सब वैसी है, you know. They may be in uniform, but I am not in uniform. But in terms of fitness level, I am much better than all of them. आज भी, you know, बाहर होके भी, ex-veteran होके भी. So yes, it was painful. You know, I won't lie. Uniform आज भी जब देखता हूँ, I have my last pair of uniform, last pair of shoes and all those my medals and all. But regret नहीं है. Civilian life में अभी जो veteran life है, last 13 years I am a veteran, and I am equally contributing to the cause and for the nation, you know. And दो पहलू देख लिए, वो भी पहलू देख लिया. फौज जाने के पहले, फिर फौज गए, फिर अब फौज के बाद. और every serving person, ऑफिसर है या सेलर है या everyone will be a veteran someday. It's a matter of 5, 10, 20, 25, 30 years. So we are living that life, and we maintain the dignity because we still believe that we are in uniform, you know. तो अगर हमसे कैसे होता है कि अगर आज हमने कुछ गलती कर दी तो सब बोलेंगे कि फौजी करके, एक्स फौजी था करके, यू एक्स फौजी ने ये किया. सो वी कैरी अ ह्यूज थिंग ऑन आवर, बोलते हैं ना, सर पे ताज लेके हम चलते हैं. और वो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैंने नेवी को कुछ नहीं दिया. नेवी हैड गिवन एवरीथिंग टू मी. यू नो, आर्म फोर्सेस हैज गिवन एवरीथिंग टू मी. व्हाटएवर आई एम टुडे, पर्सनालिटी जो भी है, या यू नो व्हाटएवर लिटिल स्ट्रेटा ऑफ लाइफ आई एम, गाड़ी चलाता हूँ, सब कुछ है. एक जमाने में कुछ नहीं था. So it was thanks to Navy. You know, it gave me an entire personality. It helped me shape up in life, thought process. तो हम फौज को कुछ नहीं देते, फौजी हमें सब कुछ देता है. That is the thing I believe. And मैं ऐसे ही जिया हूँ और आगे भी ऐसे ही जीता रहूंगा. इनफैक्ट सर, ये सुन के मेरे को एक इंसिडेंट ध्यान आ रहा है. सो वी वर इन एनडीए एंड कॉमोडोर उदय भास्कर, हु इज वन ऑफ द लीडिंग उदय भास्कर sir, he came and he told the naval cadets at that time, so they were fifth termers, and he said कि यार you can take a sailor out of the ship but you cannot take the ship out of the sailor. तो एक बार जब वो sailor बन जाता है, फिर वो उसकी रगों में मतलब
वो सेलिंग ही बहती है. ही वॉज मोटिवेटिंग द नेवल कैडेट. सो वही मुझे एक और उसका ही रिफ्लेक्शन आपकी बात से भी सर यही मिला कि एक बार बन गए तो फिर मतलब इट गेट्स इम्बाइब्ड, डीएनए में ही चला जाता है वो चीज, सर लगता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड ये जो फौजियत तब जाती है, अपने मौत के साथ जाती है, और तब भी नहीं जाती है तो यू आर स्टिल, आप अमर हो जाते हो, बहुत कम प्रोफेशन है हमारे देश में जहां आपको प्रिविलेज मिलता है कि आप जब जस्ट वन सेकंड, आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, यस सर. हाँ, तो बहुत कम ऐसे प्रोफेशन है हमारे देश में जहां पर आपको वो प्रिविलेज मिलता है, आप वो प्रिविलेज्ड होते हो कि व्हेन एनीथिंग हैपेंस टू यू, जब आप शहीद हो जाते हो या कुछ हो जाते हो, यू आर ड्रेप्ड विथ ट्राई कलर. तिरंगे से आपको आपके पायर पे तिरंगा, पायर पे जाने तक तिरंगा उड़ाता है. ये और कहीं नहीं मिलेगा, एंड दिस इज, ये खुश नसीबी है जो फोर्सेस में है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या ये एक सौभाग्य है, बड़े से बड़ों को नहीं मिलता है ये सौभाग्य. सो दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग इन द आर्म फोर्सेस. इनफैक्ट सर, सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सर ये आपने एक बात बोली थी कि फिटनेस को लेके. सो सर मतलब मैं तो आपका वो देख रहा था, आई एम अ बिग फैन, अल्ट्रा मैराथनर. एंड सर सो वो फिटनेस का मतलब कैसे क्रेज रहा, एंड वो चीज कैसे डेवलप हुआ सर, फिटनेस वाला जो यू आर ऑल्सो फिट इंडिया एम्बेसडर सर. तो हाउ डिड दैट हैपन, फिटनेस वाला पार्ट? So fitness has been always an integral part of my life because मेरा एक छोटा छोटा सा हिस्सा है कि one of my posting was with Marcos base, Marine Commandos के साथ था मैं 2 साल, not as a Marco but I was in a Marco missile base, Marine Commandos और missile base साथ में था. तो I'm a missile engineer, so being there I was there. So साथ में हम वार्डरूम मेस में हम साथ में ही रहते थे, जो मार्कोस के ऑफिसर थे. पीटी हमारी साथ में होती थी, तो उनके पीटी में हम लोग भी जाते थे. सो द लेवल ऑफ फिटनेस वाज मेंटेन फ्रॉम देन ऑन, हाई लेवल ऑफ फिटनेस तब से थी. आई वांटेड टू ऑप्ट फॉर मार्कोस स्पेशल फोर्सेस, मैंने ऑप्ट भी की, बट बिकॉज ऑफ बीइंग अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एंड दैट टू अ टेक्निकल ऑफिसर, माय एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड. पता नहीं, मैंने तो ऑप्ट किया था, ये नहीं पता कि मैं बनता था नहीं बनता, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, सो आई वाज देयर वेरी वेरी क्लोज टू मेनी ऑफ द ऑफिसर्स. आज जो सीनियर ऑफिसर्स है मरीन कमांडोज में, मोस्ट ऑफ देम आई नो बिकॉज वी वेयर टुगेदर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ. तो बस वो सिलसिला चलता रहा. व्हेन आई लेफ्ट फौज, सो आई गॉट लास्ट के जो 1-2 साल बहुत हेक्टिक होने से मैं वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन कर लिया. थायराइड, आई हैव अ बैड थायराइड एंड माय वेट शॉट रियली बैड, 100 प्लस चला गया था. एंड टू गेट बैक इनटू लाइफ, आई अगेन स्टार्टेड द वेरी बेसिक ऑफ फौज. तो द वेरी बेसिक ऑफ फौज इज रनिंग, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू रनिंग अगेन. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग, 2 साल के बाद मैंने रियलाइज कि आई एम लविंग इट. एकेडमी में कभी इससे प्यार नहीं था रनिंग से, क्योंकि हमेशा दौड़ाते थे, तो एकेडमी में कभी रनिंग से प्यार नहीं था. बट बाहर आने के बाद आई स्टार्टेड लविंग इट. देन डिस्टेंसेस चालू किए, 10 किलोमीटर्स, 21, एक दिन करते करते 42 हो गया. एक दिन 2019 आई कंप्लीटेड अल्ट्रा मैराथन, दैट वाज 89 kilometers in South Africa. In 12, you have to complete it in 12 hours. That's a very tough marathon. So I did in 11 hours, 48 minutes. And, and I'm going again this year to run that in South Africa in August. So training has started. So, see, I always believe you have to love yourself. आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए. अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? तो आप अपने आप से प्यार कैसे करोगे कि मे बी by keeping yourself mentally, physically fit, and to respect yourself, to respect your body. और आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे, अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो कोई नहीं करेगा रेस्पेक्ट. एंड व्हेन यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ, यू विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग अदर्स आल्सो. दैट इज माय फंडा फॉर लाइफ. एंड after this session I have a fitness session. ये जैसे खत्म होता है, a training with my coach, workouts है, push-ups है, इसके बाद ही just immediately. So that has fitness has played a very significant role in my life. Piyush bhai is also there. So that's how. So my plan is to do
comrades in August this year. That will become my 2 comrades back to back होता है. Next year I'll be doing an Ironman. I'll be training for Ironman next year. So ये चलता रहता है, चलेगा ये सिलसिला. सर आपसे बात करने का तो और मन है, बट सर वी नो यू हैव अ बिजी स्केड्यूल, सो सर थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम सर. एनी लास्ट words of wisdom, words of inspiration that you want the students to leave with, because exams are lined up next month. CDS and NDA का exam lined up है, FCAT की SSB start हो चुकी हैं. So sir, what are your final words of wisdom before leaving, sir? Yeah, so to all students who would be appearing for various exams, पहले तो कोई अगर आपको बोले बिना प्रिपरेशन के कुछ होता है तो गलत बोलता है, वो ऐसे ही बोलता है. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं प्रिपेयर किया. ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर एंड विजुअलाइज करो. विजुअलाइजेशन टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक. अगर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे एंड यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ इन यूनिफॉर्म. तो बोलते हैं ना कि आप अगर कोई चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात एक हो जाती है उसे पूरा करने, है ना, शाहरुख खान का डायलॉग. दैट इज अ फैक्ट. सो जब आप विजुअलाइज करोगे, आप मेहनत करोगे उसके लिए, है ना, आप उसके लिए मेहनत करोगे. और जब आप मेहनत करोगे, समडे दैट विजुअलाइजेशन विल हैपन, इट विल हैपन, होके रहेगा. और बिना तैयारी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है. जमाने में कुछ नहीं होता है. किसी को ऐसे लगेगा. और सही तरीके से मेहनत करना. तो जो भी बच्चे एनडीए, सीडीएस, एफकैट का एग्जाम दे रहे हैं, तुक्का मत मारना, पढ़ाई करके जाओ. एंड फिर आप जो स्पेशल, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सर मुझे स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना है, मार्कोस ज्वाइन करना, कैसे करे. तो माय सिंपल एडवाइस इज पहले एग्जाम तो पास हो जाओ, पहले फौज में तो पहुंचो, वेरेवर, भर्ती से. इफ यू आर गोइंग फॉर द सोल्जर एंट्री, भर्ती से, इफ यू आर गोइंग फॉर द ऑफिसर एंट्री, पहले एग्जाम पढ़ के एनडीए में तो आओ, पहले ओटीए में तो आओ, या आईएमए में तो आओ, या आईएनए में तो आओ. उसके बाद सोचो ना, उसके बाद सोचो कि आई विल जॉइन मार्कोस और विचएवर. बहुत लंबी दौर है. और ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे यहाँ पे सब ग्लैमर देखते हो फौज का. यूनिफॉर्म देखोगे, बैचेस देखोगे, मेडल्स देखोगे, बॉल डांस देखोगे. लाइफ इज बियॉन्ड दैट. लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. एक फौजी बनना इज अ ह्यूज सैक्रिफाइस. यू हैव टू सैक्रिफाइस योर फैमिली टाइम, यू हैव टू सैक्रिफाइस योर पर्सनल थिंग. आपकी जो पोस्टिंग, वॉरशिप्स वगैरह में जो पोस्टिंग होती है, छोटे छोटे कमरे होते हैं उसमें, आप ढंग से टर्न नहीं मार सकते हो. ये होता है कि सी सिकनेस होता है आपको, खून की उल्टी होती है, छोटे छोटे जहाज होंगे तो. और ये देयर इज टफ, लाइफ इज टफ. सो इन ऑल दिस टफनेस आपको स्ट्रांग बनकर निकलना है. इसलिए नेवी में कहावत है ना कि फिजिकली फिट एंड मेंटली टफ. तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड मेंटली टफ. एंड इन सब. और एक छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगा जो यंग लोग हैं, यंगस्टर्स जो ज्वाइन करना चाहते, कि कोई भी लफड़े में मत फंसो. किसी को मारामारी नहीं करना, पुलिस केस मत बना के लेना अपने आप पे, बाइक वेक से गिर मत जाना, टंगड़ी उंगड़ी तोड़ के रॉड मत लगवा लेना, या कुछ नहीं करना. बी मेडिकली फिट ऑल्सो टू दैट. सो बी फिजिकली फिट, बी मेडिकली फिट. सो योर जर्नी विल बी इजी, राइट? सो दिस इज what my learning has been from the days of my armed forces days rather. और मेहनत करो, हो जाता है. वैकेंसीज बहुत है, लोग मिलते नहीं है ना. वैकेंसीज बहुत है, लोग मिलते नहीं है. So do your best and wishing all of you all the best. So कुछ भी रहा तो. Yeah. So it seems we have come a full circle. शाहरुख खान के सोल्जर से सर इंस्पायर हुए थे एंड फाइनली शाहरुख खान के डायलॉग के साथ सर एंडेड. थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम सर. वी वुड लव टू होस्ट यू अगेन whenever you get time, and best wishes for your ultra marathon sir. Yeah, thank you so much. I think lot of questions are there. You Yes, can sir. take it up. Yes sir. और कुछ रहा तो. Yes sir, you can, like, if you have time sir, there are various questions. First is of Somil. First is, sir, are SSBs for technical entries difficult? I have heard they send back most of the students to reduce crowd. No, not at all. All the SSB exams are similar. Only the technical interview, they may ask you technical questions in the first PI round, the personal interviews and other stuff. So not to worry.
सर देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, बट सर लेट आपका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं सर काफी सारे स्टूडेंट्स। मोबाइल नंबर अगर मेरे को, मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है, फॉलो करो, मैसेज डालो, मैं जनरली रिप्लाई करता हूँ। यू नो, आई रिप्लाई 99% अनलेस सम स्टूपिड क्वेश्चन इज देयर। सर देन दे आर आस्किंग कि सर यंग एज में ज्वाइन करना इज मच मोर एडवांटेजेस इफ यू आर ज्वाइनिंग इन द लेट एज। सर उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं क्या फोर्सेज में? कोई ड्रॉबैक नहीं है। यंग एज में ज्वाइन करोगे तो यू यू ज्वाइन एज अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर। लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन चांसेस फॉर परमानेंट कमीशन एंट्रीज आर वेरी लेस। तो आप शॉर्ट सर्विस ज्वाइन करोगे, है ना? तो दैट इज द ओनली एडवांटेज डिसएडवांटेज। सर मेनी आर आस्किंग व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज सर? दिस डेज बस ऐसे इंस्टाग्राम पे आके बकवास करता हूँ, और क्या। Okay, so I work. I am a vice president with a company, one of the national, compliance body audit. So I have a day job. I'm a very busy guy, busy professional. I handle 3 companies, and I have a huge team. And yeah, that's my. तो कर लेते हैं, कभी कभी काम भी कर लेते हैं ऑफिस में, सो ऐसे। दिस इज सर साइड हसल इन अ वे। सॉरी। सर सो आई एम जस्ट टेलिंग द स्टूडेंट सर दिस इज सर साइड हसल। सर का फुल टाइम, सो यू कैन वी कैन लर्न दिस थिंग फ्रॉम सर दैट हाउ टू मैनेज टू एंड मोर थिंग्स इफेक्टिवली। यहाँ सर हमसे एक एक बुक मैनेज नहीं हो पाती एंड यू आर मैनेजिंग टू साइमल्टेनियस करियर्स इन इटसेल्फ, लाइक इंस्टाग्राम इन इटसेल्फ इज लाइक अ थिंग जिसको फुल टाइम लोग करते हैं एंड यू आर मैनेजिंग टू थिंग्स विद सच पेनाश। तो सर हैट्स ऑफ टू यू। सो सर दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू टेक एनी अदर क्वेश्चन सर। nahi, so that's it. Because see, Instagram and all is only to connect with young people. So you always have a give back, you know. मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब मैं आप एस्पिरेंट था, माई जर्नी फ्रॉम एस्पिरेंट टू एन ऑफिसर, तब कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो इसलिए ये मेरा कर्तव्य होता है, यू नो, सिंस मीडियम इज देयर, इट इज माई ड्यूटी टू कम बैक एंड गिव बैक, you know, come back and give back. So Instagram is only for, you know, coming back and giving. This doesn't, I don't want to earn anything from this platform per se. And जरूरत भी नहीं है, because, you know, we are सर really busy professionals. सर एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आया है आपके लिए। सर आपके लिए लाइफ की ट्रू मीनिंग क्या है? मेरे लिए लाइफ का ट्रू मीनिंग इज ओल्ड मॉन्क यार। हर वीकेंड ओल्ड मॉन्क इज एवरीथिंग, सो दैट इज लाइफ। ये फंडामेंट, ये क्वेश्चन आप सदगुरु जी या रविशंकर जी से पूछ सकते हैं। आई एम नॉट दी, फॉर मी लाइफ इज, यू नो, एक ही बार मिलती है जिंदगी, एक ही बार जिंदगी आती है लाइफ। एज पर इफ यू बिलीव, बोलते हैं ना 7 जन्म होता है एंड ऑल। तो हमारा जो इंसान का लाइफ है एक ही बार आता है। इसके बाद हो सकता है तुम कुत्ते बनोगे, बिल्ली बनोगे, चूहा बनोगे, जो भी बनोगे इसके बाद के जन्म में। सो लिव दैट लाइफ हैप्पीली। रिग्रेट मत रखो लाइफ में, सब कुछ करो, यू नो। संत महात्मा मत बन के बैठो, एक ही लाइफ मिलता है। हाँ, एक एज के बाद व्हेन यू रियलाइज यू हैव डन एवरीथिंग, देन यू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी, यू नो। हमारे एज में आने के बाद स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो। तब तक एंजॉय लाइफ, डू एवरीथिंग इन लाइफ, यू नो। या एज समबडी सेज, लिव लाइफ किंग साइज, एकदम बिंदास, ताकि रिग्रेट ना करो। व्हेन यू कम टू दैट ओल्ड एज, तब पीछे जाके ये नहीं बोलना चाहिए ना कि यार काश मैंने ये किया होता, मैं क्यों नहीं किया, मैं तो कमाने के पीछे पड़ा था और अब मेरे पास पैसा है तो अब मेरा कुछ हिलता नहीं है, करके हाथ पैर कुछ भी नहीं हिल रहा है। ये नहीं आना चाहिए। तो एंजॉय योर लाइफ, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। जो पास्ट है उसको भूल जाओ, जो फ्यूचर है उसका सोचो नहीं। लिव इन द प्रेजेंट, एंजॉय लाइफ। Sir, finally, there are a few questions. I guess they are from people who have been into the SSC or planning for SSC, sir. Sir, they are asking कि SSC के बाद how difficult is to move into the corporate or the other jobs, sir? So it is initially it is tough. First year is really tough. So you need to do transition. आपको कोर्स करना होता है, और यू नो, बट एक बार ये है, एक बार आप सेट हो जाते हो कॉर्पोरेट में, यू गेन ऑल दोस 10 years ऑफ शॉर्ट सर्विस। तो आप एक्सपीरियंस के साथ जाते हो। हम सब वैसे ही है ना,
So today, when I had a division, yeah, when I had this thing, all my Navy days have come as an experience, है ना? So not to worry, not to worry. At the same time, वो भले आप परमानेंट कमीशन ऑफिसर भी हो, आप बाहर आओगे तो भी आपको वो ट्रांजिशन करना पड़ेगा. तो शॉर्ट सर्विस है तो इट इज, आप यंग एज में करते हो, इट इज गुड फॉर यू, राइट? इट इज गुड फॉर यू, यू डज एट अ यंग एज. सो दैट इज देयर. किसी ने पूछा कितनी गर्लफ्रेंड थी? कोई गर्लफ्रेंड नहीं था भैया, हम संत आदमी हैं. सर आपकी घोस्ट स्टोरीज भी बहुत पॉपुलर हैं सर, सो व्हेन आर यू रीस्टार्टिंग इट? ये भी एक बहुत निगलिंग डाउट था सबके माइंड में. Very soon, very soon, very soon. I had taken a break purposefully because of some reasons. Actually, जब ghost story कभी सुनाऊंगा, तभी मैं बताऊंगा क्या हुआ था. Why I stopped. I had an experience of paranormal experience. So actually में हुआ तो that's why I took a back seat. So maybe. सर एक फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं सर, शुभम का है सर. सर जब लाइफ में ऐसा लगे सब कुछ खत्म हो गया है तो क्या करना चाहिए? आग कोई ना, तो चुपचाप आग बंद करके 2 पैक ओल्ड मॉन्क पियो, सब सही हो जाएगा. Thanks a lot, sir, for your time, sir. We would love to interact with you again, sir, if whenever you have time, sir. Yeah, definitely, sure. So someone said भांडुप में, yes, आके मिलो. I stay at Mulund. You can meet me always. Message करो, मिल लो. Yeah. So English कैसे improve करना है? See, my English was also weak. So read a lot, watch movies and सब कुछ देखो. English movie देखो. हम भी जब पहले English movie देखते थे ना, तो थिएटर या कहीं पे सब लोग हंसने के बाद 1 मिनट के बाद हम हंसते थे समझ के. सीखे हैं सबने. So you should also do like that, and by experience it comes, है ना? Okay, so I think I need to go now. All the best. All the best. Yeah, so much. I'm so happy that someone has improved his running. Thank you so much. Connect to me on Instagram. यही आईडी है, ऊपर देख लो, विजय नायर. Message करो. We can, we can further talk there. Yeah. Okay. Bye. Take care.